जी पढ़ लीजिए। जी इसमें متعلق بقوله صلاحه وعدالته أي دليل كون الوصف علة صلاحه وعدالته وهو المسمى بالمؤثرية بالمؤثرية مؤثر नहीं مؤثر ना मुताला क्या होते जी بالمؤثرية دون الاضطراد وهو المسمى بالتربية ومعنى الاضطراد دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما أو وجودا فقط وإنما فعل ذلك لأنه مختلف في معناه فقيل وجود الحكم عند وجوده وعدمه عند عدمه وقيل وجوده عند وجوده ولا يشترط عدمه عند عدمه وعلى كل تقدير ليس هو بحجة عندنا ما لم يظهر تأثيره لأن الوجود قد يكون اتفاقيا كما في وجود الحكم عند الشك فلا يدل على كونه علة والعدم لا دخل له في علية شيء من بداهة ولظهوره لم يتعرض له ومثل تعليل بالنفس أو مثل الاضطرار في عدم صلاحيته للدليل للدليل التعليل بالنفي للدليل التعليل بالنفي ووقع في بعض النصوص قوله ومن جنسه لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى فلا يلزم من انتفاء من انتفاء علة مع انتفاء جميع العلل مع انتفاء جميع العلل من الدنيا حتى يكون نفي العلة دالا على نفي الحكم كقول الشافعي رحمه الله في النكاح أي في عدم انعقاد النكاح بشهادة النساء مع الرجال أنه ليس بمال وكل ما هو ليس بمال لا ينعقد بشهادة النساء مع الرجال فلا بد من إثباته بأن يكون رجلين يكون رجلين وامرأتين وعندنا ليس لعدم المالية تعبير في عدم صحته للنساء لأن علة صحة شهادة النساء هي كونه مما لا يسقط بشبهة لا كونه على بخلاف الحدود والقياس مما يندرج بالشبهات فإنه لا يدخل بشهادة النساء وأيضا هو أدنى درجة من المال بدليل الثبوت بالحسب الذي لا يدخل به المال فلما كان المال يدخل بشهادة النساء فبالأولى أن يدخل بالانتكاح إلا أن يكون السبب معينا استثناء مفرغ من قوله ومثل تعليل بالنفي أي لا يقبل تعليل بالنفي في حال من الأحوال إلا في حال كون السبب معين فإن عدمه يمنع وجود الحكم من وجه آخر إلا وجه قول محمد رحمه الله في ولد الغصب أنه لم يزمن لأنه لم يغصب وإن من غصب جارية حاملة فولدت في يد الغاصب ثم هلك يزمن قيمة الجارية دون الولد لأن الغصب إنما وقع على الجارية دون الولد وقد علل محمد رحمه الله هاهنا بالنفس فإن علة الزمان في هذه السورة ليست إلا الغصب وباتباعه ينتهي الزمان سرورة وهكذا قوله في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر أنه لا خبز فيه لأنه لم يجد عليه المسلمون إن علة وجود خمس الغنيمة ليس إلا إجاب المسلمين بالخير وهو منطق هذا والاحتجاج باستصحاب الحال عدل على التعليل بالنفي أي مثل الاضطراد الاحتجاج باستصحاب الحال في عدم صلاحيته للدليل ومعناه طلب الصحبة الحال للماضي وأن يحكم على الحال مثل ما حكم في الماضي الحاصل إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل يزيله وهو حجة عند الشافعي رحمه الله استدلالا لبقاء الشرائع بعدد وفاته بعد وفاته وعندنا هو ليس بحجة لأن المثبت ليس بمبطئ فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجبه ابتداء في الزمان الماضي مبديا له في زمان الحال لأن البقاء حادث
غير الوجود ولا بد له من سبب على حدته. وأما بقاء الشرائع فلقيام الأدلة على كونه خاتم النبيين ولا يبعث بعده ولا يبعث بعده أحد ينسخها إلا بمجرد استصحاب الحال. وذلك استصحاب الحال يتحقق في كل حكم عرف وجوده بدليله. ثم وقع الشك في زواله من غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد فيه. فكان استصحاب حال البقاء على ذلك الوجود موجبا عند الشافعية أي حجة ملزمة على الخصم، وعندنا لا يكون حجة موجبة ولكنها حجة دافعة بإلزام الخصم عليه. وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره بقوله حتى قلنا في الشخص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده أي في السهم الآخر الذي في يده ويقول إنه بالإعارة عندك. إن القول قوله أي قول المشتري ولا تجب الشفعة إلا بينة بأن الشفيع يتمسك بالأصل وبأن اليد دليل الملك ظاهرا، والظاهر يصلح لدفع الغير لا لإلزام الشفعة على المشتري في الباقي. وقال الشافعي رحمه الله تجب بغير البينة لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعا فيأخذ الشفعة من المشتري جبرا. وإنما وضع المسألة في الشخص يتحقق فيه خلاف الشافعي إذ هو لا يقول بالشفعة في الجوار. وعلى هذا قلنا في المفروض أنه حي في مال نفسه ولا يقسم ماله بين ورثته وميت في مال غيره ولا يكون من مال مورثه لأن حياته باستصحاب الحال وهو يسلم دافعا لورثته لا ملزما على ملك. ومن هذا الجنس مسائل آخر كثيرة مذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. दून इत्तिराद, कल फरमाया था मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने कि जो इल्लत है वसफ़, इसको वसफ़ भी कहते हैं इल्लत भी कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, सालिह हो और आदिल हो। फिर आदिल किसे कहते हैं और सालिह किसे कहते हैं उन्होंने बता दिया। तो फरमाते हैं कि ये बता रहे थे कि असल जो है ना इल्लत में वो क्या है, तासीर है कि वो असर करे, क्या करे, वो असर ज़ाहिर करे अपना। दूनल इत्तिराद, ये बता कि इत्तिराद जो है ना वो मकबूल नहीं है, इत्तिराद का एतबार। अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह कुछ इल्ल फ़ासिदा को ज़िक्र करने लगे हैं जो हमारे यहाँ मोतबर और मकबूल नहीं है। दौर में से सबसे पहले जो है ना इल्लत तरदिया को ज़िक्र करने लगे। तो फरमाते हैं दून इत्तिराद, इत्तिराद हमारा मोतबर नहीं है। ये भी मुताल्लिक़ है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह के कौल सलाहुहु व अदालतुहु के साथ। फरमाते हैं कि वसफ़ का इल्लत होना तब मोतबर होता है जब उसका वो सालिह और आदिल, और उसको जो है ना इल्लत मुअस्सिरिया कहा जाता है, ठीक है, और उसको इल्लत तरदिया भी कहते हैं। इत्तिराद मोतबर नहीं। इत्तिराद कैसे कहते हैं? तो इत्तिराद कहते हैं दौरानुल हुक्म मअल वस्फ़ को, कि हुक्म का दौरान वसफ़ के साथ, हुक्म का दौरान किसके साथ, वसफ़ के साथ, यानी हुक्म वसफ़ के साथ साथ क्या हो रहा हो, घूम रहा हो, ठीक है ना। अब इत्तिराद किसे कहते हैं? दौरान हुक्म माल वसफ़ को। और दौरान हुक्म वसफ़ के बारे में फिर आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह दो कौल ज़िक्र करते हैं कि वजूदन व अदमन और वजूदन फ़क़त। बाज़ हज़रात तो कहते हैं
कि हुक्म घूम रहा होगा वसफ़ के साथ। क्या मतलब? यानी वसफ़ मौजूद तो हुक्म भी मौजूद, वसफ़ मादूम तो हुक्म भी मादूम। यानी कि वसफ़ हुक्म को मौजूद कर रहा है, वसफ़ मौजूद है तो हुक्म को मौजूद कर रहा है, और इसी तरह वसफ़ ही हुक्म को मादूम कर रहा है कि हुक्म मौजूद नहीं तो उसकी वजह यह है कि वसफ़ मौजूद नहीं है। अब बाज़ हज़रत कहते हैं वजूदन फ़क़त, कि नहीं सिर्फ दौरान हुक्म अर्ज़ का मतलब है कि अगर तो वसफ़ मौजूद है तो फिर हुक्म मौजूद होगा, ज़रूरी, ये ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वसफ़ मौजूद ना हो तो उसकी वजह से हुक्म भी मौजूद ना हो। समझ आगे कि नहीं है? ये ज़रूरी नहीं। वजह कुछ और भी हो सकती है कि वसफ़ मौजूद नहीं है तो हुक्म मौजूद ना होने की कोई और वजह भी हो सकती है, कोई रुकावट भी हो सकती है, वग़ैरह ज़ालिक। समझ आगे कि नहीं आए? तो यही बात कर रहा है इन्नमा क़ाला ज़ालिका से इसकी बात कह ली अन्नहुम इख्तलफ़ू फ़ी मानाहु, कि जो हज़रत इसके क़ाइल हैं इल्लत तरदिया के, उन्होंने इसमें इख्तिलाफ़ किया। तो ये कौल है कि वजूदुल हुक्म इंद वजूदी व अदमुहु इंद अदमी, ये हमने अभी पढ़ लिया। और वक़ील वजूदु इंद वजूदिही वला युश्तरतु अदमुहु इंद अदमी। ठीक है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि जो है ना वो हुक्म के ना होने की वजह उसका वसफ़ का ना होना है। लेकिन फरमाते व अला कुल्लि तक़दीर लैसा वो बिहुज्जतिन इंदना मा लम यज़हर तअसीरुहु। जो भी तारीफ़ ले लें आप उसकी, तो फरमाते हमारे यहाँ वो मोतबर नहीं है, जब तक इल्लत का असर ज़ाहिर ना हो जाए तब तक हमारे यहाँ वो इल्लत नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फरमाते अन्नल वजूद क़द यकूनु इत्तिफ़ाक़िया, कभी कभार वजूद यानी हुक्म का मौजूद होना इत्तिफ़ाक़ी तौर पर होता है, जैसे कमा फ़ी वजूद हुक्म इंद शर्त, जैसे हुक्म मौजूद होता है शर्त के वक्त भी, शर्त पाई जाए मशरूत पाया जाता है, हुक्म पाया जाता है, लेकिन शर्त को तो कोई भी इल्लत नहीं कहता। समझ आ गया? अब देखो हुक्म तो मौजूद है लेकिन इल्लत नहीं है। समझ आगे कि नहीं आई? तो ज़रूरी तो नहीं है कि इल्लत ही हुक्म को मौजूद करेगी और इल्लत ही हुक्म को क्या करेगी? मादूम करेगी। तो ये बात फरमाते फला यदुल्लु अला कौनि इल्लत। अब शर्त ने हुक्म को मौजूद किया लेकिन ये उसके इल्लत होने पर दलाल तो नहीं करता कि शर्त इल्लत बन गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वल अदम ला दख़ल लहु फ़ी इल्लियत शैइन बिल बदाह, ये फरमाते हैं कि मादूम होना, ठीक है, इल्लत का ये तो बतरीक़ औला हुक्म को मादूम नहीं करता, इसमें तो कहते इसके कोई दखल ही नहीं है। समझ आ गई कि नहीं है? इल्लत की किसी चीज़ की इल्लत के होने में कि वो मौजूद नहीं, इस वजह से कि उसकी इल्लत मौजूद नहीं है। तो फरमाते वाली ज़हूरी लम यतअर्रस, चूँकि बात बहुत ज़्यादा ज़ाहिर थी, वाज़ेह थी, इसलिए मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने इसकी तारुज़ नहीं की, इसका पीछे नहीं किया, इसका जिक्र नहीं किया। ठीक है कि मादूम होना हुक्म का ये इल्लत की वजह से नहीं होता, बात वाज़ेह है, इस वजह से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने इसको जिक्र नहीं किया। वमिस्लु अत्तालीलु बिन्नफ़ी, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह दूसरी इल्लत फ़ासिदा को जिक्र करने लगे। फरमाते और मिस्लु उसी की तरह, किसकी तरह? इल्लत तरदिया की तरह। अत्तालील बिन्नफ़ी है, इल्लत निकाल नफ़ी के साथ, ये भी किसकी तरह है? इसका मतलब ये होता है कि हुक्म की नफ़ी करना इल्लत की वजह से, हुक्म की नफ़ी करना इल्लत की नफ़ी की वजह से।
इसको तालील बिन नफ़ी कहते हैं कि हुक्म की नफ़ी की जाए, लेकिन किसकी वजह से? इल्लत की नफ़ी की वजह से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अत्तालील बिन नफ़ी ने इल्लत निकालना किसके साथ? नफ़ी के साथ। ये बात समझ आ गई ना? तो फरमाते अत्तालील बिन नफ़ी मिसल इत्तिराद फ़ी अदम सलाहियत लिद्दलील अत्तालील बिन नफ़ी। फरमाते इत्तिराद की तरह हुक्म के उसका सलाहियत ना रखने में, दलील की सलाहियत ना रखने में, ये तालील बिन नफ़ी भी है। फरमाते वक़ा फ़ी बाज़ नुस्ख़, बाद नुस्ख़ों में वमिन जिन्सिही अत्तालील बिन नफ़ी, किसी जगह पर ये है वमिन जिन्सिही अत्तालील बिन नफ़ी। यहाँ पर तो ना मिस्लु अत्तालील बिन नफ़ी, लेकिन बाद नुस्ख़ों में वमिन जिन्सिही अत्तालील बिन नफ़ी ये लफ्ज़ है। किसी जगह पर ये लफ्ज़ है किसी जगह पर, किसी की किताब में? जी नहीं है। ठीक है जी, हमारे बाद नुस्खों में ऐसा है जी। अच्छा, तो नुस्खे की तरफ इशारा है, बाद नुस्खों की तरफ ना। तो फरमाते हैं कि लिअन्न इस्तिक़सा अल-अदम ला यमनअ अल-वजूद मिन वजह आखर, कि आदम का इस्तिक़सा, आदम का इहाता, मादूम होने का इहाता, ये नहीं मना करता वजूद को किसी और वजह से, किसी और वजह से। इसलिए फरमाते कि हुक्म जो है ना, क़द यस्बुतु बिइल्लिन शत्ता, मुख्तलिफ़ इल्लतों से साबित हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि एक इल्लत से साबित हो। कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं आप जी? कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? उधर से गुफ्तगू फरमाए जी। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं जी? घर से आ रहे हैं? सोए हुए थे जी? खैर, आपके लिए 2-3 लड़कों के ज़िम्मे आप ज़िम्मे लगाना पड़ेगा, ड्यूटी लगानी पड़ेगी आपको जगाने की। क्या ख्याल? 2-3 साथियों के ज़िम्मे लगाने, उनकी ड्यूटी लगानी पड़े, आपको जगा देकर। खड़े हो जाओ इधर। तो फरमा रहे थे कि हुक्म कभी कभार साबित होता है मुख्तलिफ़ इल्लतों की वजह से। तो ज़रूरी नहीं है किसी इल्लत की नफ़ी की वजह से, कि वो इल्लत नहीं तो दुनिया से तमाम इल्लतों की नफ़ी हो गई। वो इल्लत अगर नहीं है मौजूद तो कोई और इल्लत हो सकती है जो हुक्म को साबित कर सकती है। तो ये कहना कि फ़लाँ इल्लत चूँकि नहीं है, फ़लाँ इल्लत की नफ़ी है, तो लिहाजा हुक्म की भी नफ़ी निकाल दिया। समझ आ रही कि नहीं आई? तो ये मतलब तो नहीं है, कोई एक इल्लत तो नहीं है जिसकी वजह से हुक्म साबित हो सकता है। बहुत सारी इल्लतों से एक हुक्म साबित हो सकता है। जैसे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा है निकाह में, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह में गवाहों के लिए मर्द होना ज़रूरी है, सारे के सारे मर्द हो, यानी 2 मर्द हो बस। वो फरमाते ऐसे नहीं हो सकता कि एक मर्द और 2 औरतें हो। हम कहते हैं एक मर्द अगर हैं और 2 औरतें हैं तो ठीक है, उनकी गवाही मोतबर है। वो फरमाते हैं नहीं, दोनों मर्द हों, औरतों की गवाही मोतबर नहीं है। उसकी वजह फरमाते हैं कि निकाह जो है ना, ये माली मामला नहीं है।
समझ आ गई। और जो मामला माली ना हो वो औरतों की गवाही से मोतबर मुनाकिद नहीं होता, यानी मर्दों के साथ औरतें भी गवाही दें और मुनाकिद नहीं होता। लिहाजा ज़रूरी है कि क्या हो, दो मर्द हो, औरतों की गवाही मोतबर नहीं। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? फरमाते माली मामला नहीं है, जो माली मामला ना हो उसमें मर्दों के मिलकर औरतें गवाही नहीं दे सकती। लिहाजा निकाह में भी औरतों की गवाही मोतबर नहीं है। हम कहते हैं कि माली मामला ना होना, कोई मामला माली ना हो, इसका कोई असर नहीं है, ठीक है, कि वो सही ना औरतों की गवाही के साथ। यानी ऐसे कोई बात नहीं है कि जो भी मामला माली नहीं होगा उसमें औरतों की गवाही मोतबर नहीं हो। माली ना होना यही तो असर नहीं करता इस बात में कि उसमें उस मामले में औरतों की गवाही मोतबर ना हो, सही ना हो। बल्कि बात तो यह है कि औरतों की गवाही हर उस मामले में सही होती है जो मामला या जो मसला जो है ना शुबे की वजह से साक़ित ना होता हो। अलबत्ता जो मामला जो है ना अमर या मसला शुबा की वजह से साक़ित होता हो तो वहाँ पर तो औरतों की गवाही मोतबर नहीं। तो औरतों की गवाही मोतबर है या नहीं है, इसका दारोमदार किस पर है कि वो शुबे से साक़ित होता है कि नहीं। अगर उसमें शुबा पैदा हो जाए, वो साक़ित हो जाए, तो वहाँ पर औरतों की गवाही मोतबर नहीं है। और अगर शुबे से साक़ित ना होता हो तो वहाँ पर औरतों की गवाही मोतबर है। अब हुदूद आप लोगों ने पढ़ा, हुदूद तंदरिउ बिशुबहात, हुदूद साक़ित होती है शुबहात के साथ। तो हद जो है ना, ज़िना के हद है, ठीक है, हद क़ज़फ़ है, वहाँ पर औरतों की गवाही मोतबर नहीं। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा है कि ज़िना में मर्द हो, कितने हो, 4 मर्द, औरतें नहीं। वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि 3 मर्द हो 2 औरतें हों, या 2 मर्द हों तो 4 औरतें हों। वहाँ पर तो ये है, समझ आ गई। लेकिन उसके अलावा तो कोई भी मामला ऐसा नहीं है जो औरतों की गवाही से मोतबर ना हो सकता। समझ आ गई कि नहीं है? बल्कि फरमाते हैं कि वअज़्न हुवा अदना दरजत मिनल बात, निकाह तो माल से भी अदना दर्जे का है। वो कैसे कि निकाह जो है, निकाह वो तो मजाक के साथ अगर किया जाए तभी मुनाकिद हो जाता है। आपसे उसमें फरमाया सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, अन्निकाह व तलाक़ वल इताक़, ये 3 उमूर ऐसे हैं कि अगर वो आप संजीदा करें, सीरियस आप करें तो भी मुनाकिद हो जाते हैं, अगर मजाक में करें तो भी मुनाकिद हो जाते हैं। उसमें एक निकाह भी है, ठीक। खातून के साथ कोई किसी खातून को कहता लड़की कि मजाक में निकाह कर लेते हैं, मजाक कर दें, मजाक, बस 2 गवाह के सामने मजाक में मैं आपको कह देता हूँ कि मैंने आपसे निकाह कर लिया, आप मजाक में कह देना कि मैंने कबूल कर लिया, मजाक। उसने कह दिया और निकाह हो गया। उसको आप कहने के ढूंढो, अब मुझे ढूंढती रहो, अब खुद मुझे ढूंढोगे, मैं तुझे नहीं ढूंढूंगा। समझ आ गई कि नहीं है? तो ये तो मजाक में भी होता है, और माली मामला जो होता है वो मजाक में नहीं मुनाकिद होता है। तो मालूम हुआ कि तो माली मामले से भी अदना दर्जे का है। तो ये तो बहुत अदना दर्जे का है। तो ये तो औरतों की गवाही जो है इसमें बताइए कि औला मोतबर होने चाहिए।
ये तो मुनाकिद होना चाहिए औरतों की गवाही के साथ। समझ आ गई कि नहीं आई? तो फरमाते हैं जब माली मामला औरतों की गवाही से मोतबर होता है तो ये तो माल से भी अदना दर्जे का है, तो ये तो बेतरीक़ औला जो है ना औरतों की गवाही से मोतबर होना चाहिए, मुनाकिद होना चाहिए। इल्ला अन यकून अस्सबब मुअय्यना, फमा तालील बिन नफ़ी मोतबर नहीं है। अलबत्ता अगर सबब क्या हो, मुअय्यन हो, तो फिर उस सूरत में तालील बिन नफ़ी मोतबर होगा। तालील बिन नफ़ी क्या होगा? मोतबर होगा, ये कह रहे हैं। फरमाते हैं क्योंकि जब सबब क्या हो जाए, मुअय्यन हो जाए ना, तो उस सूरत में गोया कि फिर मुसब्बब क्या हो जाता है, सबब के साथ ख़ास हो जाता है। समझ आ गई कि नहीं है? तो जब मुसब्बब सबब के साथ ख़ास हो गया तो उस सूरत में फिर किसी और तरीके से वो वजूद में आ ही नहीं सकता, सबब के अलावा किसी और तरीके से वो मुसब्बब वजूद में नहीं आ सकता। फिर इसी सबब के ज़रिए से वो क्या होगा, पाया जाएगा, वजूद में आएगा। किसी कोई और चीज़ पर उसको साबित नहीं कर सकती, उस मुसब्बब जो ख़ास जो हो गया। तो फिर उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि ये मुसब्बब जो है ना, ये हुक्म जो है ना, इसकी नफ़ी हो रही इस वजह से कि वो सबब की नफ़ी, सबब की नफ़ी उस सूरत में फिर मुसब्बब की नफ़ी पर दलालत करेगी। फिर उस सूरत में तालील बिन नफ़ी क्या है, ये दुरुस्त मोतबर होगा। उसकी मिसाल जैसे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किया कि कौल मोहम्मद रहमतुल्लाह फिल ग़स्ब, मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल ये, किसी ने किसी की बांदी क्या की, ग़स्ब कर ली। उसके बाद बांदी ने बच्चा दिया, गासिब के कब्ज़े में थी कि उसने बच्चा जाना। उसके बाद क्या हो गया, वो बांदी भी मर गई और बच्चा भी मर गया। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस बांदी का ज़मान तो इस पर है, उसका तावान तो ये भरेगा गासिब, लेकिन बच्चे का तावान इस पर नहीं है। वो फरमाते हैं वजह क्या, वजह यह है कि उसने क्या किया था, उस शख्स ने ग़स्ब किया था बांदी को, बच्चे को तो उसने ग़स्ब ही नहीं किया था। तो जिसको ग़स्ब किया था उसका तावान भरेगा, जिसको ग़स्ब नहीं किया था उसका तावान नहीं। तो जिस पर ग़स्ब उसका तावान, जिस पर ग़स्ब नहीं उसका तावान नहीं, तालील बिन नफ़ी हो गई ना। समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, बच्चे का तावान नहीं क्योंकि उस पर ग़स्ब वाक़ नहीं हुआ, तालील बिन नफ़ी यही है ना। ठीक है, तावान नहीं क्योंकि इल्लत नहीं, उसकी इल्लत नहीं है ग़स्ब, और बांदी का तावान है इसलिए कि उस पर ग़स्ब वाक़ हुआ। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जो है ना ये बता रहे। और इसी तरह वहा कज़ा क़ौलुहु, और इसी तरह फरमाते इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया फिल मुस्तख़रज मिनल बहर कल्लुअलु वल अंबर, कि जो दरिया से ना मोतिया या जवाहिर वग़ैरह मिले या सोना चांदी वग़ैरह ये चीज़ें मिले, फरमाते हैं उसमें खुमुस नहीं है। हमारे बाकी आज़ाद तो फरमाते हैं ना कि उस पर खुमुस अदा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फरमाते हैं उसमें खुमुस नहीं है। क्यों खुमुस क्यों नहीं है? लिअन्नहु लम यूजिफ अलैहि मुस्लिमून, कि मुसलमानों ने उस पर घोड़े नहीं दौड़ाए। मुसलमानों ने क्या है, उस पर खुमुस, उस पर घोड़े नहीं दौड़ाए, यानी वो जंग के ज़रिए से हासिल नहीं हुआ।
घोड़े दौड़ाने का मतलब ये इशारा किया इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने, वो माल फ़ई में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैरिन वला रिकाब वलाकिन्न अल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा। कि जो माल फ़ई अल्लाह ताला ने माल दिया माल फ़ई के तौर पर बनु नज़ीर में से, तो तुमने इस पर ना घोड़े दौड़ाए हैं और ना ही ऊँट, जो अल्लाह उसके रसूल के लिए फिर मसरफ़ का जिक्र किया है। तो माल फ़ई में खुमुस नहीं होता, माल गनीमत में खुमुस होता है। माल गनीमत माल फ़ई का फ़र्क तो जानते हो ना। माल गनीमत वो है जो जंग के ज़रिए से कुफ़ार से हासिल हो जाए, उसमें से 5 हिस्सा निकाला जाता है, बैतुल माल में डाला जाता है, बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम होते हैं। और माल फ़ई जो जंग के बगैर कुफ़ार से हासिल हो जाए, उसमें खुमुस नहीं निकाला जाता। समझ आ गई कि नहीं आई? तो जैसे माल फ़ई में खुमुस नहीं निकाला जाता, उसकी वजह अल्लाह ताला ने क्या बताई है कि उसमें तुमने घोड़े नहीं दौड़ाए, तुमने जंग नहीं की। तो इस तरह इमाम मोहम्मद फरमाते हैं इसमें भी खुमुस नहीं निकाला जाएगा, इसलिए कि भी तो जंग के ज़रिए से हासिल नहीं हुआ कि इसमें खुमुस निकाला जाए। समझ आ गई? खुमुस नहीं, ये हुक्म है, हुक्म के नफ़ी। खुमुस नहीं क्यों? इल्लत के नफ़ी की वजह से कि घोड़े नहीं दौड़ाए गए। खुमुस की इल्लत क्या? घोड़े दौड़ाने, जंग करना। तो जंग नहीं की गई इसलिए खुमुस भी नहीं, तो तालील बिन नफ़ी हो गया ना, ये तालील बिन नफ़ी है। समझ आ गई ना? तो फरमाता फ़इन्ना इल्लत वुजूब खुम्सिल गनीमत लैसत इल्ला इजाफ़ल मुस्लिमीन बिल खैर और मुंतफ़िन हा होना। फरमाते हैं कि गनीमत की खुमुस के वजूब की इल्लत क्या है? घोड़े दौड़ाना, और वो यहाँ पर उसकी नफ़ी हो रही है। वल एहतिजाज बिस्तिस्हाबिल हाल, तीसरी इल्लत फ़ासिदा, वह इस्तिदलाल करना इस्तिस्हाब हाल के साथ। फरमाते भी मक़बल पर आतिफ़ है, तालील बिन नफ़ी पर कोई भी इत्तिराद की तरह है, यानी मुअतबर नहीं है। इस्तिस्हाब हाल भी फरमाते हैं ये दलील बनने की सलाहियत नहीं रखता, ये भी हमारे मुअतबर नहीं है। व मानाहु तलबु सहबतिल हाल लिल माज़ी बि अन युहकम अलल हाल बिमिस्लि मा हुकिम फिल माज़ी। क्या मतलब? कि मौजूदा हालत को क्या करना? माजी पर क़ियास करना, कि माजी में जो उसका हुक्म था अब भी उसका वही हुक्म होगा। मिसाल के तौर पर पानी है, उसके बारे में पता नहीं कि अभी नजस हुआ है कि नहीं नजस, लेकिन माजी में पता है कि माजी में क्या था, वो पाक था। तो अब हम कहेंगे कि अब भी वो पाक होगा। मौजूदा हालत को क्या करेंगे? क़ियास करेंगे माजी पर, कि माजी में पाक था तो अब भी पाक होगा। समझ आगे कि नहीं आई? तो फरमाते व हासिल, उसका खुलासा इब्क़ाउ माकान अला माकान बिमुजर्रद अन्नहु लम यूजद लहू दलील मुज़ीब। फरमाते किसी चीज़ को बाकी रखना, ये मौजूदा हालत को बाकी रखना साबका हालत पर, बस सिर्फ इस वजह से कि साबका हालत को कोई ज़ायल करने वाली दलील नहीं है। यानी हमने कहा पानी पहले पाक था अब भी पाक था, समझ आ गई? उसकी तहारत को कोई ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है। यानी जब तक हमें मालूम ना हो कि इसमें नजासत पड़ी है, नजासत पड़ के इसने तहारत को ख़त्म किया है, तो हम उसको क्या समझेंगे? ताहिर समझेंगे। हम उसको क्या समझेंगे? ताहिर समझेंगे। अब अगर हम खुद देख लें कि उसमें नजासत पड़ गई, तो उस सूरत में फिर वो क्या होगा, जो है ना, फिर वो नजस होगा। वो कि अब दलील पाई गई मुज़ील, उस नजासत को, उस तहारत को ख़त्म करने वाली, ज़ायल करने वाली। तो फरमाते हैं हुज्जत इस्तिस्हाब हाल इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह क्या हुज्जत मुल्ज़िमा भी है और हुज्जत दाफ़िया भी है। हमारे यहाँ हुज्जत मुल्ज़िमा नहीं है, हुज्जत दाफ़िया है। बात आ रही है?
इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस्तिदलाल करते हैं इस्तिस्हाब हाल के मोतबर होने पर उन तमाम शरई अहकाम के साथ जो बाकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। हम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं देखिए नमाज हम पढ़ रहे हैं, नमाज फ़र्ज़ है, क्यों? इसलिए कि पहले फ़र्ज़ थी। ज़कात फ़र्ज़ है इसलिए कि पहले फ़र्ज़ थी। हज फ़र्ज़ है इसलिए कि पहले फ़र्ज़ था। समझ आ गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चीज़ें फ़र्ज़ थी, अब भी फ़र्ज़ है। हम गोए कि इनको अभी मौजूदा हालत को, इन चीज़ों को मौजूदा हालत में इन चीज़ों को क़ियास कर रहे हैं साबिक़ा हालत पर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ से इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस्तिदलाल करते हैं कि इस्तिस्हाब हाल क्या है? मुअतबर है। लेकिन वो फरमाते हैं वइंदना हुवा लैसा बिहुज्जा, इस्तिस्हाब हाल हमारे यहाँ हुज्जत नहीं है। लिअन्नल मुस्बित लैसा बिमुबकिन, कि एक चीज़ जो चीज़ साबित करती है वो साबित करने वाले के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुबक़ी भी हो। यानी एक चीज़ ने एक चीज़ को, एक दलील ने एक हुक्म को साबित किया तो ये मुस्बित हो गई वो दलील उस हुक्म के लिए। लेकिन वो दलील मुस्बित तो है लेकिन मुबक़ी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको बाकी भी रखे। ये तो नहीं हो सकता। मुस्बित तो किया लेकिन बाकी रखे, ये तो नहीं हो सकता। बका के लिए और दलील की ज़रूरत होती है। इस बात के लिए दलील अलग कि साबित, इस दलील ने इसको साबित कर दिया, लेकिन बका के लिए कि इसको बाकी, उसके लिए और दलील की ज़रूरत होती है। मुस्बित मुबक़ी नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर सज्जीर उधर बैठ गया था, जो जिधर बैठाया था अखबस उन्नास, तो फिर उसके उस पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, इसको भी इधर से उठाना पड़ेगा। अब सारे पता नहीं उसके पास जा रहे क्या कर, तो जिधर बैठाया नहीं था, उठो इधर, ये आखिरी चांस, लास्ट वार्निंग है, लास्ट दफ़ा तुझे मैं वार्न कर दूँ। समझ आ रही कि नहीं यार? तो इंसान बनता नहीं। तो फरमाते फ़ला यल्ज़म अन यकून अद-दलील अल्लज़ी औजब इब्तिदाअन फ़ी ज़मान अल-माज़ी मुबक़ियन लहू फ़ी ज़मान अल-हाल। फरमाते ज़रूरी नहीं है कि वो दलील जिसने उस चीज़ को वाजिब किया इब्तिदाअन यानी माज़ी में, उसको बाकी भी रखे हाल में। लिअन्न अल-बक़ाअ आरिज़ुन हादिसुन ग़ैरुल, इसलिए कि बक़ा जो है ना ये तो आरिज़ है, बाद में हुआ है, हादिस है, ठीक है, गैर वजूद के लिए। वला बुद्द लहू मिन सबबिन अला हल, उसके लिए ज़रूरी है अलग सबब का होना। साबित करने के लिए अलग सबब का होना ज़रूरी है और बाकी रखने के लिए अलग सबब का होना ज़रूरी है। अब इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ने जो इस्तिदलाल किया है शरई अहकाम से, तो कि वह भी बाकी है, तो हम उनको क़ियास करते हैं साबिक़ा हालत पर। जैसे साबिक़ा हालत में बाकी थे, अब भी है इस्तिस्हाब हाल की वजह से। तो इसका जवाब देते हैं वम्मा बक़ाउ शराइ फ़लिक़ियाम अदिल्लति अला कौनी ख़ातमुन नबी। तो फरमाते हैं कि शरई अहकाम का बाकी होना ये उन दलाइल के वजह से है जो दलाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबी हैं, उन्हीं पर दलालत करते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगम्बर आने वाला नहीं है जो इन अहकाम को मनसूख करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी पैगम्बर है, ख़ातमुन नबिय्यीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक चलेगी। इस वजह से अहकाम बाकी है, क्योंकि पहली शरीयत ही मनसूख होती थी तो अल्लाह ताला रसूल भेजते थे, उनको नई शरीयत देते थे, तो पिछली शरीयत मनसूख हो जाती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है कि क्या हो जाए, वो शरीयत मनसूख हो जाए। तो इसलिए क्या है, वो जितनी जो शरीयत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो भी शरीयत के अहकाम होंगे बाकी रहें। तो इस वजह से है, सिर्फ इस्तिस्हाब हाल की वजह से नहीं। फरमाते वज़ालिक अल-इस्तिस्हाब बिल-हाल यतहक़्क़क़, इस्तिस्हाब हाल साबित होता है फ़ी कुल्लि हुक्म, हर उस हुक्म में कि जिसका वजूब पहचाना गया उसके दलील के साथ, फिर उसके बाद शक हो गया उसके ज़ायल होने। इसके अलावा कि कोई दलील कायम हो जाए उसके बका पर या आदम पर गौर फ़िक्र के साथ या उसमें इज्तिहाद करने के साथ, बस कोई नई दलील नहीं होती, ठीक है।
उस पर उसको बाकी रखने पर। बस सिर्फ ये है कि पहले पाक थी वो चीज़ या पहले ये हुक्म था, अभी हुक्म है। तो फरमाते फ़कान इस्तिस्हाब हाल बक़ा अला ज़ालिक वजूद मूजिबन इंद शर, फरमाते उस हाल पर बाकी रखना, ठीक है, उस चीज़ को ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के यहाँ वाजिब करने वाला है, यानी हुज्जत मुल्ज़िमा ख़सम पर, मद्दे मुक़ाबिल पर। जो मद्दे मुक़ाबिल अगर उसका दूसरा हुक्म बयान कर रहा है तो हम इस्तिस्हाब हाल की वजह से उस ख़सम पर इस हुक्म को लाजिम कर सकते हैं कि इस्तिस्हाब हाल की वजह से इस हुक्म को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। समझ आ रही? लेकिन हमारे यहाँ वअन्ना यकून हुज्जत मूजिबा, हमारे यहाँ हुज्जत मूजिबा नहीं है लेकिन हुज्जत दाफ़िया है। यानी हमारे यहाँ हम कहते हैं इस्तिस्हाब हाल किसी और पर, फ़रीक़ मुखालिफ पर किसी को लाजिम कुछ नहीं कर सकता, अलबत्ता अपने आप से किसी चीज़ को क्या कर सकता है, हटा सकता है, दफ़ा कर सकता है। समर इख्तिलाफ ज़ाहिर होगा किस सूरत में? इस सूरत में एक मंजिल है, वो दो बंदों के दरमियान क्या थी, मुश्तरक थी, आधे आधे। उसमें से एक शख्स ने अपना हिस्सा बेच डाला, मुश्तरी ने ख़रीद लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हिस्सेदार था उसका, उसने शुफ़े का मुतालबा किया कि ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मैं चूँकि उसका हिस्सेदार हूँ, शरीक था, तो मैं ज़्यादा हक़दार हूँ, ये हिस्सा मैं लेना चाहता हूँ, और ये जेके मेरा हिस्सा है, इसमें उसका हिस्सेदार था मैं। और मुश्तरी ने क्या किया, मुश्तरी ने इनकार कर दिया। वो जो उसका हिस्सा, जो उसका हिस्सेदार था ना, उसके हिस्से में, उसकी मिल्कियत में जो हिस्सा था उसका इनकार कर दिया कि मानता ही नहीं मैं कि आपका हिस्सा है, आप इसके साथ हिस्सेदार थे, मानता नहीं, बल्कि आप इसके हिस्सेदार नहीं थे, बल्कि वो कहता है कि आपके पास आरियतन था, या आरियतन आपके पास है, मिलकर नहीं है। समझ आ गई? तो अब उस वक्त में फरमाते हैं कि मुश्तरी की कौल का एतबार किया जाएगा और शुफ़ा वाजिब नहीं होगा मगर बय्यना के साथ। अगर तो वो हिस्सेदार बय्यना कायम करता है तो ये दो गवाह गवाही देते हैं कि हाँ जी, इसकी मिल्कियत में जो हिस्सा है, जो मंजिल का, वो ये शख्स उसका मालिक है और वाकई उसका हिस्सेदार था। अगर तो बय्यना कायम करता है फिर तो उसको शुफ़े का आका से मिलेगा, वो शुफ़ा कर सकते हैं, और जो हिस्सा उसने साथी ने बेचा था वो ले लेगा। और अगर तो उसके पास बय्यना नहीं है तो उस सूरत में फिर वो जो है ना शुफ़ा नहीं ले सकता, शुफ़े का हक़ नहीं रखता, वो हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि इस सूरत में फिर गोया कि वो जो शुफ़े का दावा कर रहा है ना, वो इस्तिस्हाब हाल की वजह से कर रहा है कि मेरे, चूँकि ये मेरे कब्ज़े में है इसलिए मैं इसका क्या हूँ, मालिक हूँ। वो हिस्सा जो हिस्सेदार है ना, वो क्या कहना चाहता है कि मैं चूँकि मेरे कब्ज़े में है, मैं इसलिए मैं इसका मालिक हूँ। तो ये तो इस्तिस्हाब हाल की वजह से कर रहा है, वो दलील तो कोई नहीं। तो इस सूरत में इस्तिस्हाब हाल जो होता है ना, दफ़ा तो करता है अपने आप से, किसी और को दफ़ा तो करता है, लेकिन किसी और पर शुफ़ा लाजिम करे, इसकी वजह से मुश्तरी पर जो है ना वो शुफ़ा लाजिम हो जाए और उससे वो हिस्सा ले ले, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये तो हम नहीं कर सकते कि वो जो हिस्सेदार जिसके पास हिस्सा है वो हम उससे ले लें, नहीं, अपने से तो हटाता है कब्ज़ा जो है ना। तो इस्तिस्हाब हाल के ये तो है कि वो कह रहा है कि मेरे पास मिल्कन है, तो उससे तो हम नहीं ले सकते वो हिस्सा। चलो
इस्तिस्हाब हाल इतना तो करता है कि अपने से हटाता है, लेकिन यह है कि वो दूसरों पर लाजिम करे शुफ़ा, उसके इस्तिस्हाब हाल की वजह से शुफ़ा दूसरों पर लाजिम हो जाए और शुफ़े की वजह से वो जो हिस्सा उसके साथी ने शरीक ने बेचा था वो भी ले ले। ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई ना? ये दाफ़े तो है, हुज्जत दाफ़े आता है, लेकिन हुज्जत मुल्ज़िमा नहीं है। समझ तो आ गई ना ये बात? हाँ, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शुफ़ा वाजिब हो जाएगा बग़ैर किसी बय्यिना के। बय्यिना की ज़रूरत नहीं है, बस इस्तिस्हाब हाल की वजह से वो कह रहे हैं कि शुफ़ा वाजिब है। जब उसका कब्ज़ा है उस हिस्से पर तो उसका मालिक है, तो उसका इसके साथ वाला हिस्सा उसके साथ वाला हिस्सा बेचा गया, तो लिहाजा उसको शुफ़े का हक़ हासिल है। तो उनके यहाँ हुज्जत दाफ़िया भी है और हुज्जत मुल्ज़िमा भी है। लिहाजा फरमाते हैं बय्यिना की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुश्तरी से वो ज़मीन ले लेगा अगर वो ख़रीदना चाहता है शुफ़ा करके जबरन, बस। तो गोया कि उनके यहाँ इस्तिस्हाब हाल हुज्जत मुल्ज़िमा भी है, मुश्तरी पर शुफ़ा लाजिम कर रहा है कि उससे क्या ले ले, वो हिस्सा ले ले। फरमाते हैं कि ये जो है ना, हमने जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने मसला वज़ा किया है मंजिल में हिस्सेदार हो, जो मसला लाया ना सूरत मसला कि दो शरीक मंजिल में हिस्सेदार थे, एक ने अपना हिस्सा बेचा, अब उसके शुफ़े का हक़ हासिल है कि नहीं है। तो ये हमने जो इससे मंजिल वाला सूरत मसला ज़िक्र किया ये इस वजह से ताकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ़ भी इसमें साबित हो जाए। हमारे यहाँ तो अगर पड़ोस का हो, पड़ोसी कोई ज़मीन वगैरह बेचे, उसमें भी जो है ना हम शुफ़े के कायल हैं, और शुफ़े का यही तरीक़ा कार जो हमने अर्ज़ किया। हमारे यहाँ तो पड़ोसी को भी शुफ़े का हक़ हासिल होता है, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के यहाँ जो है ना, जो जार होता है, पड़ोसी होता है, उसको शुफ़े का हक़ हासिल नहीं होता। तो इसलिए हम मंजिल वाला मसला जो है लाए हैं कि इसमें तो इत्तेफ़ाक़ है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह भी इसको मानते हैं, इसलिए हमने इसको ज़िक्र किया। अगर हम पड़ोसी वाला मसला लाते तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसको तो हम मानते ही नहीं है, वो तो हमारे मोतबर ही नहीं है। तो इसलिए हमने वो पड़ोसी वाला मसला ज़िक्र नहीं किया। वरना अगर पड़ोसी कोई घर बेचे, ज़मीन बेचे, तो उसमें भी जो है ना, जो उसका पड़ोसी होता है उसको शुफ़े का हक़ हासिल होता है इसी तरीक़ेकार के मुताबिक। फरमात इसी तरह हमने मफ़क़ूद के बारे में कहा है, कोई शख्स गायब हो जाए, कुछ अता पता उसका नहीं, कुछ अता पता नहीं, बिल्कुल गायब हो गया, कई साल गुजर गए, बिल्कुल गायब है, कोई राब्ता नहीं, तो आप फरमाते हैं कि उसको ज़िंदा समझा जाएगा अपने माल के बारे में। लिहाजा उसका माल वरसा के दरमियान तकसीम नहीं होगा, उसका निकाह उसकी बुढ़ी के साथ, बीवी के साथ बाकी रहेगा, लेकिन गैर के माल में उसको मुर्दा समझा जाएगा। किसी अगर कोई उसका और रिश्तेदार मरता है, फौत होता है, ठीक है, जिसका वो वारिस बन रहा हो, तो उसको वारिस नहीं बनाया जाएगा, उसका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसकी जो ज़िंदगी हमने रखी है वो इस्तिस्हाब हाल की वजह से है। तो इस्तिस्हाब हाल जो है ना, हुज्जत दाफ़े तो है, अपने हक़ से तो हटाता है दूसरों को, लेकिन हुज्जत मुल्ज़िमा नहीं है। तो अपने हक़ के बारे में तो हम उसको ज़िंदा ही समझेंगे, लिहाजा उसका माल तकसीम नहीं किया जाएगा, उसका निकाह ख़त्म नहीं होगा जब तक हनाफ फरमाते हैं उसके जो मुआसिर है वो सारे के सारे मर ना जाए, 70, 75, 90 साल तक उसको ज़िंदा समझा जाएगा। लेकिन हुज्जत मुल्ज़िमा नहीं है कि दूसरों को भी दूसरों के माल में भी उसको वारिस बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह जिन्स के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इनकी तफरीह हो सकती है, लेकिन हमने बस एक आध मसले पर इक्तिफ़ा कर लिया। समझ आ गई कि नहीं आई? वमा अलैना इल्ला